सीज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विद्यार्थियों को समय समय पर उज्जवल भविष्य के नए आयामों के बारे में सब्जेक्ट एक्सपर्ट से रूबरू कराता रहा है। इसी कड़ी में टीवी एवं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और अपना अलग मुकाम हासिल करने वाले अभिनेता अमित सोनी ने सीज टॉक के माध्यम से स्टूडेंट्स को अभिनय विद्या के गुर सिखाए एवं स्टेज आर्ट्स और व्यक्तिगत विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, एग्रीकल्चर जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ ही स्टूडेंट्स के लिए आर्ट्स एंड कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स और एक्टिंग में भी असीम संभावनाएं हैं। और अमित सोनी जी जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपने भी अपना टाइम निकाला है हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, तो वुड लाइक टू थैंक टू यू आल्सो। और मैं चाहूँगा कि हमारे ग्रुप के ईडी मैडम जो कि हैं साक्षी अग्रवाल मैडम से कि आप जिससे a few words to start the program, मैम कुछ आप वर्ड्स कहना चाहेंगे? Thank you so much, Prateek sir, and everyone here. A warm welcome to you all from Sage Group. आप लोगों ने एक introductory video तो Sage Group का देखा, उसमें it's proud that in Bhopal and Indore we have been given this opportunity कि हम लोग इतने लोगों को अपने आप से connect कर पा रहे हैं in education industry and in real estate industry. Right now we have approximately 18,000 students currently studying with us and 50,000 alumni. Plus a workforce of more than 2,500 people and connected to 4 lakh plus lives because 1983 से हम लोग ने जो जर्नी शुरू करी थी, पापा ने अपनी स्टार्ट करी थी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की और यहाँ तक आई हैं, तो ये सब आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सम्मान की वजह से पॉसिबल हुआ है हमारे लिए। एंड thank you so much for it and a warm hearty welcome to the star of Bollywood, Mr. Amit Soni sir. Thank you so much for being with us today, Amit sir. And I hope कि हम लोग बहुत अच्छे से आपसे कुछ learn कर पाएं। हमारे बहुत सारे students भी हैं in the Institute of Performing Arts who want to get into this industry and who are so creative and artistic in their own way. And उनसे आपको inspiration, उनका inspiration आपसे जो उनको मिलेगा, I think that will help them go a long way in deciding their career and in deciding what challenges they will face and how they can overcome those challenges. So thank you Prateek sir, thank you Neeraj Agrawal sir for introducing us to a great personality like Amit Soni sir, and let's hear from him now. Thank you so much for ma'am for your valuable words. और now I would like to request to Soumya जो कि सर के बारे में अपना इंट्रोडक्शन देंगी, और या नवीन सर वुड यू लाइक टू प्ले द सौम्या प्लीज आप थोड़ा सा अपना सर के बारे में बताएं, अमित सर के बारे में। तो सौम्या हमारी स्टूडेंट है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, शी इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। यस सौम्या प्लीज। हेलो, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। Mr. Amit Soni is the star celebrity. He has worked in serials including Ye Hai Mohabbatein, Fear Files, बेटा भाग्य से बिटिया सौभाग्य से, ना हारेंगे हौसला हम, सलाम इंडिया, श्रीमद् भागवत, परम अवतार श्री कृष्ण, and web series like Janvi. He was producer and actor. An upcoming movie should be, that is Purity of Soul. The movie is out for festivals worldwide. Already selected in Manchester Liftoff Film Festival 2019, United Kingdom, Pinewood Film Festival London, second in the Jan Film Festival, and top 3 in Gwalior Film Festival. Great. Album song Kailash launched by T-Series, launched Sara Hindustan song with 22 celebrities, and Tujo Mila Khuda Hum, Z Music, upcoming. Brand shoots, DP Jewelers, 7 Styles, G9 Clothes. So we have such a great celebrity over here, and we are so honored to have you with us, sir. Now I would request Mr. Naveen sir to play a video. Please, Naveen sir. Thank you so much. Yeah, Naveen sir, please.
जिंदगी क्यों मैं तेरे काबिल नहीं। Very nice. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लैपिंग। Nice. सो काफी सारे स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन किए हैं, काफी सारे फैकल्टी मेंबर्स भी हमें ज्वाइन किए हैं, और सभी का कहीं ना कहीं ये ड्रीम होता है कि वो हीरो बन जाए, मूवी में उसकी रिलीज हो जाए। हर कोई ऐसा सोचता है, लेकिन सब लोग अपने अपने करियर प्लान्स में बिजी होते हैं। कुछ पीपल कुड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, few people could not think due to their family condition situations, few could not get the opportunity, इस टाइप से रहता है। लेकिन सबको रहता है कि अपनी लाइफ में वो हीरो बने, किसी का लोग उसे फॉलो करें, स्टूडेंट्स फॉलो करें, रोल मॉडल बने। टीचर्स को तो रहता ही है इनफैक्ट ये सारी चीजें का। तो इतने अच्छे सेलिब्रिटी आज हमारे बीच में हैं, अमित सोनी जी। तो आपको वार्म वेलकम वंस अगेन फ्रॉम सेज ग्रुप, फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी भोपाल एंड फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, कि आप यहाँ पे आए हैं और अब हमारे स्टूडेंट्स को आप एनलाइटिंग करेंगे, उनको कुछ बहुत अच्छे गाइडेंस आपसे मिलेंगे कि कैसे एक सक्सेस हिस्ट्री बनाई जाती है और कैसे उसमें स्ट्रगल्स को करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो मैं चाहूंगा कि अमित जी अब थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताएं। आपने कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप आ गए? आप पहले से आपने कुछ डिसाइड किया था या इट्स बाय चांस, बाय हार्ट या बाय लक? अमित सर, प्लीज सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए, और थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए बहुत बेताब है हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स। तो आपके मैं भी जैसे बेताब स्क्रीन हूँ पे आप आए तो सब धूम मच गई। बिल्कुल जी। जी। पहले तो सबके लिए थैंक यू सो मच, आपने इस काबिल समझा मुझे। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपका सवाल है कि क्या ये मेरा ड्रीम था, यस ऑफ कोर्स, सबका जैसे आपने बोला एक ड्रीम रहता है। मेरी एजुकेशन बहुत छोटी जगह से हुई। मैं बैरसिया में मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ, सरस्वती स्कूल था वहां से। तो उस वक्त एक बाल सभा हुआ करती थी सैटरडे को, तो उसमें मैं ना मिमिक्री किया करता था अपने स्टूडेंट्स के, जो मेरे आसपास कैरेक्टर हैं, लाइक कोई हकलाता है, कोई तुतलाता है, या जो भी है। और चक्कर में मार भी बहुत पड़ती थी, क्योंकि टीचर्स को भी नहीं छोड़ता था, टीचर्स की भी एक्टिंग किया करता था। पर वेल इसके आगे बढ़ता चला गया, चीजें हुई, और ज्वेलरी डिजाइनिंग किया, काफी चीजें की, जॉब किया। फिर एक इंसिडेंट मेरे साथ क्या हुआ कि अमर कौशिक, शायद आपने जानते हो, जिसने स्त्री फिल्म बनाई है, स्त्री और बाला, तो उसका डायरेक्टर है अमर कौशिक। तो अमर एंड मी, मतलब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे। अमर उस वक्त स्ट्रगल कर रहा था, और वो भी मुंबई में था, मैं भी मुंबई में था। तो सोनी के सेट पे मैं एक बार गया हुआ था कुछ काम से अमर से मिलने के लिए। तो वहां दिव्यंका त्रिपाठी शूट कर रही थी, और उस वक्त मैं डी रमास डायमंड ज्वेलरी में ऑलरेडी जॉब कर रहा था। एकदम सडनली दिल से एक आवाज आई कि यार एक दिन दिव्यंका के साथ काम करूंगा। और आप किस्मत देखिए कि कुछ वक्त पहले जब मैं ये है मोहब्बतें कर रहा था, एक सीन था जिसमें दिव्यंका त्रिपाठी को मुझे किडनैप करना था, और उस वक्त जो भी सीन चल रहा था, तो मैंने ये बात दिव्यंका को बताई। मैंने कहा देखो, हम जो सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद सही, पर वो होता है। तो और मेरी जिंदगी में तो अक्सर वो चीजें हुई हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने सोचा है, ऊपर वाली कृपा से, बाबा जी की कृपा से हुआ है। तो ये मेरा एक सपना था। हाँ, उस सपने के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जो बहुत काफी लंबी स्टोरी है, बट यस ऑफ कोर्स मैंने उसके अंदर ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, काफी चीजें जो मैंने जिसके लिए अप्लाई किया। फैशन डिजाइनिंग के लिए मैंने अप्लाई किया था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए अप्लाई किया। उस वक्त मैं पीछे से फर्स्ट था, मतलब टोटली डफर, मैं पढ़ाई में बहुत वीक था। तो पर आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईडीआई, मैं जो वर्ल्ड का एक सेकंड लार्जेस्ट कॉलेज बोलते हैं ज्वेलरी का, मैं वहां से गोल्ड मेडलिस्ट निकला, और सो मेनी थिंग्स। तो एनीवेज, सपना था मेरा ऑफ कोर्स, बट रास्ता नहीं पता था, मंजिल नहीं पता थी, क्योंकि छोटी जगह बैरसिया सागर, यहाँ हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, और हमें कोई रास्ता, उस वक्त इतने प्लेटफॉर्म होते भी नहीं थे। तो यस ऑफ कोर्स। मतलब ये चीजें दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने सरस्वती शिशु मंदिर से स्टार्ट किया, और मतलब और आप सागर से हैं, बैरसिया से हैं, मतलब हम एमपी से हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली ये चीज इंस्पायर करती है कि छोटी जगह से भी हम छोटा शुरुआत करके भी नॉर्मल स्कूल से बिल्कुल भी जैसे बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं, तो लेकिन आगे भी इफ यू हैव अ करेज टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स ट्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो
सर अगला क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स से है, स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इतना अच्छा फिजिक आप कैसे मेंटेन करते हैं, और सर इतनी बढ़िया पर्सनालिटी का क्या राज है सर? प्लीज कृपया वो बताएं। सर इसको मैं आपको एक बहुत अलग तरीके से बताऊंगा। मतलब मैं थोड़ा सा इसमें इसलिए डिटेल में बताऊंगा, ये मेरी इससे मेरा करियर का भी कुछ कनेक्शन है। जी जी एक्चुअल में मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं आई वर्क विद तमजीद भायतुल्ला, देन आफ्टर आई शिफ्टेड इन इंडिया। मैं पीसी ज्वेलर्स का रीजनल था, तो पूरा एमपी छत्तीसगढ़ पूरे ब्रांचेस देखता था। तो जबलपुर ब्रांच का एक बार ओपनिंग था, तो मैं 3 साढ़े 3 महीने उस वक्त मैंने डे नाइट पूरा वर्क किया, खाना पीना सब चीजें बिल्कुल, मतलब मेरी स्ट्रैटेजीज हमेशा ऐसी रही हैं कि ऑफ कोर्स मेरी कंपनी को मैंने हमेशा बहुत अच्छे परसेंटेज पे बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। तो मैंने उस चक्कर में अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, और बिल्कुल मैं अपने हेल्थ, मेरा 92 केजी वेट हो गया था उस वक्त। तो उस मैं डॉक्टर अरविंद नामदेव जी हैं, मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मैंने कहा मेरे को स्टमक में थोड़ा पेन हो रहा है। तो उन्होंने मेरी एज पूछी, मेरा जब वेट लिया, तो मुझसे बोले वो कि ये आपकी एज नहीं है, मतलब आप इसमें इतना अपनी हेल्थ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो मैंने कहा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतने सेक्टर लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे सबको देखना होता है, इतना शोरूम देखना होता है, तो मुझे, मैं या तो हेल्थ देख सकता हूँ या फिर ये देख सकता हूँ। तो बोले आप जो कमाएंगे कल आप अपनी हेल्थ में ही लगाएंगे, और ये तो आप दूसरे का सपना पूरा करने के लिए अपनी हेल्थ को खो रहे हैं। कल आप अगर 2 महीने को अगर आप जॉब पे नहीं जाते तो क्या होगा? मैंने सर कुछ नहीं होगा, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो मुझे वो बात कहीं ना कहीं क्लिक कर गई। मुझे लगा कि सच बात ये है कि कहीं न कहीं हम इस एक भाग-दौड़ में, एक भीड़ में बस भागते चले जा रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। जबकि सबसे बड़ा टारगेट आपकी हेल्थ आपका होना चाहिए। आपकी हेल्थ अगर आप स्वस्थ हैं, तो ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, या आप एक्टर हैं, जो भी है। तो मैंने वहाँ से अपने करियर में चेंज किया। और इसके अलावा जब मैं मुंबई गया, जब मुझे बेटा भाग्य से, बेटियाँ सौभाग्य से, और मैंने अदर सीरियल्स किए, तो उस वक्त मुझे बड़े रोल ऑफर होने लगे, क्योंकि मैं हेल्दी था, तो मेरी एज ज्यादा दिखने लगी थी। मैं वापस आया, मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 साल बिल्कुल लो कार्ब्स का खाना, 15 दिन में एक बार सिर्फ सिर्फ खाना खाना, और डेली का 10 to 12 किलोमीटर्स, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक, या फास्ट वॉक या रनिंग, और 2 से ढाई घंटे का वर्कआउट, और टोटल रोटी राइस वगैरह ये सब छोड़कर बॉइल्ड डाइट पे रहा मैं। ऑलमोस्ट मुझे 2-3 साल हो गए थे। फिर मैंने 16 केजी वेट रिड्यूस किया, तो इसके लिए मेहनत बहुत की मैंने। 16 केजी रिड्यूस करने के बाद फिर मेरे एकदम से मुझे और अच्छी बोलना चाहिए रोल बहुत अच्छे मिलने लगे, ऑफर अच्छे आने लगे, और सबसे अच्छी बात, जब आप खुद अपने आप में फिट होते हैं, आपको जब अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो जिंदगी अपने आप आपको बहुत खूबसूरत लगने लगती है। सो नाइस सर, सो नाइस। और डेफिनेटली इट्स इंस्पिरेशन फॉर अवर स्टूडेंट। उनको स्टूडेंट्स हर कोई चाहता है कि उसको अच्छा अचीवमेंट मिल जाए, लेकिन उसके पीछे जो किया हुआ स्ट्रगल रहता है, पीपल या से ट्रू। अबाउट यू कि यू आर लकी इनफ, लेकिन आपने कैसे यू मेड द प्लेटफॉर्म, आपने सिचुएशंस पे ओवरकम किया अपने आप को, और उसके बाद आपने जैसा प्लान किया था वैसा आपके साथ फिर चीजें होने लगी। मतलब दैट्स रियली ग्रेट सर। और ना सर, स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि कैसे बॉलीवुड में कैसे एंट्री मिले, कैसे ऑडिशंस बनाए, किससे मिले जाके तो हमें कुछ बॉलीवुड में कुछ हो जाएगा। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज आप उन्हें गाइड करें, हमारे स्टूडेंट्स को, कि कैसे, हाउ टू टेक एन एंट्री इन द बॉलीवुड सर। सबसे पहली बात तो मैं ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मैं आपको इसलिए इसको थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अभी आजकल ना प्रॉब्लम क्या हो गई है, फेसबुक, इंस्टा, ये सब जो है ना, इस पे जब 5000 10,000 लाइक्स आते हैं। अब मैंने तो देखा था अपने दादाजी और पिताजी जो हैं, उनके जो दोस्त हैं वो 20 25 50 हुआ करते थे। आज आपके इंस्टा पे और सब जगह फॉलोअर्स होते हैं वो हजारों होते हैं। पर अगर आप हजारों लाखों में बोले कि आप कितने लोगों को जानते हैं, तो आपको नहीं पता होता कितने लोग जानते हैं। वो होते 25 50 ही है। तो आप सबसे पहले ये फेसबुक, इंस्टा को, ये जो आप जब लाइक्स आते हैं गर्ल्स को, बॉयज को, तो वो ये सोचते हैं कि मैं बॉलीवुड के हिसाब से हूँ। ऐसा नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो उसमें आपको 5 7 साल 10 साल देना पड़ता है। वैसे ही जब आप बॉलीवुड के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वरुण धवन है, आलिया भट्ट है, आपके ऋतिक रोशन है। ये सिर्फ इसलिए एक्टर या इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक स्टार किड है। ये एक अच्छे डांसर भी हैं, ये एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, इनकी बहुत अच्छी फिजिक भी है। तो सबसे पहले आपके पास एक आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। फाइनेंशियल बैकअप नहीं होगा, आप मुंबई में जाएंगे और आपको काम मिल भी गया,
तो पेमेंट कंडीशन वहाँ पे 3 से 6 महीने के बाद स्टार्ट होती है। एटलीस्ट आपके पास 1 साल से 2 साल ये सोच के जाने के लिए कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, इतना बैकअप होगा तब आपका जाना उचित है। दूसरा, आपके जो आप बोलते हैं कि हमें एंटर करना है, आप मोनोलॉग आप बनाइए, अपने ऑडिशंस बनाइए, अच्छे ऑडिशंस मतलब लाइक कॉमेडी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और उसी एक ऑडिशन को आप 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार वेरिएशन के साथ कीजिए, उसी एक ऑडिशन को। जब आप अपना फर्स्ट ऑडिशन देखेंगे और जब आप अपना 20वां या 22वां ऑडिशन देखेंगे, अपने आप आपको चेंजेस दिखेगा। अगर आपको चेंजेस नहीं दिख रहा है, और वो चेंजेस सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ आपके परिवार, आपके दोस्त, आप उनको दिखाइए। अगर आपको वो नहीं दिख रहा है, तो आप ज़बरदस्ती ट्राई मत करिए, और अगर करना है, तो फिर आप प्रॉपर एक थिएटर जॉइन करिए। थिएटर जॉइन करिए, जैसे आपका एनएसडी है, ऐसे ग्रुप जॉइन करिए, क्योंकि चाहे सागर इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे एनएसडी हो, शिक्षा तो आपको गुरु ही देगा। आपके अंदर कितनी ही काबिलियत हो, दिशा आपको गुरु ही देता है। तो आप जब तक एक थिएटर जॉइन नहीं करेंगे, आपको एक सही दिशा नहीं मिलेगी, उसके इफ एंड बट्स, उसके अंदर जो बारीकियां हम आपको नहीं पता चलेंगी। तो सबसे पहले आपको अगर इस बॉलीवुड में एंटर होना है, तो आप अपने फिजिक पर, अपने स्किल्स पर, अपने एक्सप्रेशंस पर बहुत सारी चीजें उन पे वर्क करिए और थिएटर करिए। उसके बाद आप जब मुंबई पहुंचते हैं, तो वहां पर आपके कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, आपके फिल्म प्रोडक्शन हाउस होते हैं, आप उन ऑडिशंस को उनके पास भेजिए, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप जन्मा प्रोडक्शन पहुंचे हैं या यशराज पहुंचे हैं तो उस वक्त उधर पे कोई फिल्म चल ही रही हो या प्रोजेक्ट अभी चल रहा हो, तो आप जबरदस्ती चक्कर नहीं जब काटते हैं और काम नहीं मिलता तो लोग हताश हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यस्त नहीं होते, वो अस्त व्यस्त होते हैं, वो सिस्टमैटिक नहीं होते हैं। आप कास्टिंग डायरेक्टर्स हमसे थोड़ा सा पैसा जरूर लेते हैं, वो भी काम पूरा होने के बाद, पैसा मिलने के बाद, पर एटलीस्ट आपको ये पता होता है कहाँ किस जगह क्या ऑडिशंस चल रहे हैं, कहाँ पे क्या फिल्म बनने वाली है। आप उनसे कनेक्टेड रहिए और बार बार ऑडिशंस देते रहिए। मैंने ऑलमोस्ट 100+ ऑडिशंस दिए हैं। उनसे आप सक्सेसफुल होते हुए नहीं होते हो, आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। और वो 1 साल 2 साल अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मैं अब तक नहीं कर पाया, तो फिर मुझे क्या करना है। क्योंकि मैक्सिमम मैंने ये लोग देखा है कि इस फील्ड में लोग इसलिए अट्रैक्ट होके आते हैं कि यार स्टार लाइफ बहुत अच्छी होती है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू भी होते हैं। इनकी लाइफ जो होती है बॉलीवुड लाइफ, वो बहुत खूबसूरत भी है, पर अंदर से बहुत खोखली भी है। तो इसके अंदर बहुत मैच्योरिटी चाहिए और अपने आप पे बहुत संयम चाहिए, क्योंकि 2 मिनट लगते हैं आपको किसी गलत रास्ते पे जाने के लिए। जी सर। ग्रेट सर, ग्रेट 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 सर, जो कि आपने बहुत अंदर की बातें बताई, क्योंकि सबको जाना बड़ा आसान लगता है, लेकिन जाने के बाद में, काम मिलने के बाद में भी जो स्ट्रगल होता है कि पेमेंट में कभी कभी 1 साल लग जी, जाता है, और जी, आपको सरवाइव भी करना है, अपना स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना, सारी चीजें उसके साथ में, तो इट्स डेफिनेटली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन। सर, आपकी एक बहुत ही प्यारी वेब सीरीज आ रही है, जानवी। सर मेरी उसके जानवी आ चुकी है आ सर, चुकी है, सोनी आ लिव चुकी पे। है। जी, ओके सोनी ओके, लिव सॉरी। पे है। जी 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 जी, तो सर, उसके बारे में सर कुछ बताएं, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा सर उसमें? सर जानवी और खलिश, ये दोनों मैं एक्चुअली ये है मोहब्बतें कर रहा था। ये है मोहब्बतें के बाद मैं वापस आया, तो मुझे अविनाश जो इसका डायरेक्टर है, इसका कॉल आया कि सर मैं एक वेब सीरीज करना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैंने कहा स्टोरी भेजो आप। तो उनकी स्टोरी मैंने पढ़ी, तो मुझे स्टोरी अच्छी लगी, बट उसके अंदर जो उसका जो कंक्लूजन था, वो थोड़ा अंधविश्वास की तरफ ज्यादा जा रहा था। तो मैंने पापा से चर्चा करी। अब पापा मेरे बहुत अच्छे पोएट भी हैं, ही इज वेरी गुड राइटर, और बहुत उनकी बुक्स भी आ चुकी हैं। तो उन्होंने मात्र 10 मिनट लिए होंगे, बोले बेटा इसका जो लास्ट का जो कंक्लूजन है ना, इसको ऐसे इसमें थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करो, और ऐसा कुछ करके। तो उस वक्त मुझे डेंगू हुआ था। उसी वक्त फिर भी मेरे अंदर, मैं वर्कोहलिक हूँ बहुत ज्यादा, मैं बिस्तर पे नहीं लेट सकता हूँ। उसी वक्त खलिश जो सॉन्ग था, वो उस खलिश का भी एक कहानी ये थी कि मेरे एक कजिन ब्रदर के भी दोस्त का छोटा भाई था, जिसने मुझे अप्रोच किया कि मैं बहुत अच्छा, मतलब मैं, मेरे पास मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है, प्लीज आप मुझे अपॉर्चुनिटीज दीजिए। मैं, उसके फादर नहीं है, तो उसने मुझे अप्रोच किया कि मैं काफी वक्त से ट्राई कर रहा हूँ जबलपुर में, ऐसा जो भी था। तो उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी मुझे। तो जबकि मैं उससे 1 साल के बाद मिला, लॉन्च होने के बाद भी, पर मुझे आवाज अच्छी लगी, मैंने सॉन्ग को बुलाया। उस सॉन्ग को फिर मैंने टी सीरीज भेजा, वहां से उन्होंने मुझे, जो उनके टी सीरीज ने मुझे ओके किया, तो मैंने खलिश को बनाया, और उसी वक्त पैरेलली मैंने जानवी को बनाया। दोनों को बनाने के बाद
फिर इसको सोनी लिव से लॉन्च किया। और क्योंकि मुझे कई बार आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, मैं एज एन एक्टर ही काम करता हूँ, बट कुछ प्रोजेक्ट कभी कभी अच्छे लगते हैं तो मैं इसको कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी खुदा मिला अभी सिंगापुर मलेशिया शूट किया है सॉन्ग को। ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। कैलाश खेर जी के बैंड के साथ ही पूरा म्यूजिक मेरा रेडी हुआ है। और जो आपने सारा हिंदुस्तान जो सॉन्ग सुना है जी, उसमें भी मेरा वही मेरी टीम है, क्योंकि मैं वक्त के साथ दोस्त, मेरी टीम बदलता नहीं, वो मेरे साथ ही चलता है जी। ग्रेट सर, ग्रेट फिलोसफी सर। अब आपका सॉन्ग भी हम थोड़ा सा लास्ट में प्ले करेंगे, एक बार हमारे ऑडियंस को भी दिखाएंगे। वैसे तो सबका देखा हुआ है, उसमें भी 22 सेलिब्रिटीज के साथ आपने जी काम सारा किया। हिंदुस्तान जी। सारा हिंदुस्तान एक ऐसा सॉन्ग है जो मतलब मैं आज लाइफ में कुछ भी कर लूं आगे, बहुत सक्सेसफुली कितना ही अच्छा काम कर लूं, ये मेरा इसमें बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में मैं टीवी देख रहा था, सभी लोग कोरोना पे लेकर इतनी न्यूज वही चर्चा, आदमी दिन भर उसी पे बात, फोन पे बात। तो मुझे लगा कि लोग ना बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा बनाते हैं कि जो बहुत पॉजिटिव हो, जिसको सुन के लोग मतलब एक फ्रेश फील करें। तो मैंने गौरव को कॉल किया जो इसके लिरिसिस्ट भी है, उसने ये सॉन्ग भी गाया हुआ है। मैंने यार मैं ऐसा कुछ सॉन्ग करते हैं। और इत्तेफाक नहीं उसके एक हफ्ते बाद मुस्कुराएगा इंडिया लॉन्च हो चुका था। तो जो खैर उन्होंने पहले कर दिया था ऑफ कोर्स, बट मैंने गौरव को बोला, उसने ये सॉन्ग लिखा, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने अपने कुछ सेलेब्स को कॉल किया, मेरे जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर, यस जी। तो मैंने उन जो आपके भाभी जी घर पे हैं, जो आपके रोहितोष जी हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं, सुदेश बेरी जी हैं, तो सभी को मैंने कांटेक्ट किया। और कुछ मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट थे, कुछ मेरे डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने हेल्प करी। तो काफी लोगों ने, एक यहाँ पे दीपक है, उन्होंने हेल्प करी। तो जब मैंने उसको सॉन्ग को करना चाहा, मैंने इस सॉन्ग में सच में ये 1.5-2 महीने का पूरा लॉकडाउन निकाला है। क्योंकि डिफिकल्ट ये होता है कि हर इंसान घर में बैठा हुआ है। इस घर के अंदर आपको मैंने उनको बोला लैंडस्केप में आपका वीडियो चाहिए, वो पोर्ट्रेट में सेंड कर रहे हैं। कुछ सेलेब्स में नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने उनको बोला, उन्होंने टी-शर्ट की जगह बनियान में मुझे शॉट भेज दिया। तो क्या मैं बात है सर। तो मैं उनको बोलना चाह रहा सर हिंदुस्तान के लिए सॉन्ग है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। अब क्या होता है, 150-200 फुटेजेस में से आपको 2.5 से 3 मिनट का फुटेज निकालना है, लिपसिंग मैच करनी है, म्यूजिक एडिटिंग, मास्टरिंग, मिक्सिंग, बहुत बहुत सारी चीजें होती है, खासकर तब जब आपके पास एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी नहीं है। तो गौरव को भी बहुत डिफिकल्टीज हुई। गौरव ने बैठ के घर पे सॉन्ग को, गौरव ने और मनोज ने जो सॉन्ग का म्यूजिक जो रेडी किया है, उसने बहुत एफर्ट से किया। तो हमारी टीम ने, हमने बहुत एफर्ट किया। और मैं ऑलमोस्ट डेली 12 से 14 घंटे फोन कॉल्स पे रहता था, बट एनी हाउ मैंने कर लिया। उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि एक लेबल से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने पेपर साइन किए, उन लेबल ने, उन्होंने बोला कि इसको हम लॉन्च करते हैं। ये पिछले महीने की 25 को लॉन्च होना था। अब सब चीज होने के बाद उन्होंने एंड मोमेंट पे बोला कि इसमें से क्या मोदी जी की फुटेज हटा दीजिए, कोरोना वॉरियर्स के फोटो आप हटा दीजिए। अब क्योंकि मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी का नहीं हूँ, मेरा ये सॉन्ग मेरे प्राइम मिनिस्टर के लिए था, ये मेरे देश के लिए था, और ये एक कमर्शियल सॉन्ग नहीं था। ये मेरी इच्छा थी, मैं अपने देश के लिए, हम लोग कोई खाने से कोई लोग हर तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, पुलिस अपनी तरह से हेल्प कर रही है। तो हम वो चीजें करते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज भी दूंगा जो एक मोटिवेशनल चीज हो। पर उन्होंने इसको बोला कि हम इसको कमर्शियल करेंगे, नहीं तो आप इस सॉन्ग को हम लॉन्च नहीं करेंगे। अब क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका था, मेरी पूरी सेलिब्रिटी से पूरे मेरे कमिटमेंट हो चुके थे, तो वो जो एक हफ्ता था मैं बहुत टेंशन में रहा। फिर मैंने सोचा कि खुद को परखा जाए। फिर मैंने इंडिया न्यूज से बात किया, हम लोगों ने फिर 9XM से कांटेक्ट किया, फिर जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनसे कांटेक्ट किया, उन सबको बहुत पसंद आया वो सॉन्ग। फिर हमने कहा चलो एक बार एक रिस्क लेते हैं। एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म जरूर नहीं था इसका, बट हमने कहा इसको हम इंडिया में हर जगह पहुंचाएंगे, और बाबा जी की कृपा से हमने पहुंचाया। 9XM में अभी फर्स्ट नंबर पे मुस्कुराएगा इंडिया चल रहा है, सेकंड नंबर पे हमारा सॉन्ग चल रहा है। तो इट्स गुड। वेरी नाइस सर, थैंक वेरी यू सो नाइस। मच। और ना आपने बहुत ही रियलिस्टिक बात बताई है, बिल्कुल जैसे कि हम लोग भी कुछ जब जॉइंट इफर्ट्स करते हैं, कुछ काम करते हैं काफी सारे लोगों के साथ मिलके, तो जैसा हमें लगता था ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ ही आती है, लेकिन आपने बताया आपके साथ भी बहुत ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आई कि किसी ने हॉरिजॉन्टल बना दिया, किसी ने वर्टिकल बना दिया उसको, तो वीडियो को। तो बहुत सारी चीजें होते हैं, जी सीनियर लोग होते हैं, आप उन सीनियर्स को बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो जी हमसे बहुत सीनियर्स होते हैं। और काफी ज्यादा रिजोल्यूशन कम का वीडियो भेज देंगे,
10 सेकंड के फुटेज के भेज देंगे, मतलब बहुत सारी चीजों को हमें होना पड़ा, बट यस बाबा जी की कृपा से हो गया वो चीज। जी जी जी, सो रियलिस्टिक सर। और इसमें सोनू सूद सर का मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगा। सोनू सूद सर से कांटेक्ट किया और सोनू सूद सर ने इसको, हमें उनको सॉन्ग अच्छा लगा, उन्होंने एग्री किया। इवन उन्होंने फुटेजेस का बोला, तब तक हम लोग अपना उनकी फुटेज लेकर एडिट कर चुके थे और हमने लॉन्च कर दिया था। तो सोनू सूद सर को बहुत पसंद आया। अभी अपने शिवराज जी जो अपने एमपी के सीएम है, उन्होंने इस सॉन्ग के लिए ट्वीट किया हुआ है। कैलाश खेर जी ने को बहुत पसंद आया सॉन्ग। तो टचवुड सबकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई होप बहुत ही आपको भी पसंद आया हो, आप लोगों ने सुना बिल्कुल हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस दिन आपकी जिंदगी में, और क्योंकि जब सपना आपका है तो पूरा आपको करना है, तो वहां पे आप किसको एक्सक्यूज देंगे? जब आपको लगता है कि आप अपना कहीं भी थोड़े से भी लेजी हो रहे हैं, या फिर वहां से आए हैं और ट्रैवलिंग करके थक गए हैं, तो फिर आपने एक थोड़ा सा आपने पावर नैप लिया, ये सब चीजें, फिर से हम लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। और मुंबई की लाइफ ही ऐसी है, जो रुक गया वो रुक गया, जो आगे जिसको बढ़ना है तो उसको ये उसकी जिंदगी में ये सब चीजों के लिए जगह नहीं है कि कैसे मैनेज करें। मैनेज आप अपने आप करने लगते हो। और हाँ, एक और खास बात मैं बोलूंगा, मैं हर उस इंसान के लिए बोलूंगा जो जिंदगी में ऐसा ये सोचता है कि मेरी जिंदगी में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप सच मानिए, अगर आप मुंबई में आप अपनी लाइफ को 2 से 3 साल जिएंगे, तो आपको वक्त का, पैसे का और परिवार का सही मूल्य पता चलेगा। जब 30 सेकंड के अंदर आपके स्ट्रगलिंग टाइम में आपके सामने से ट्रेन निकल जाएगी, या फिर आप घर पहुंचेंगे और आपकी माँ के हाथ का खाना आपको नहीं मिलेगा, या आपके अनसिस्टमैटिक रूटीन की वजह से बेफिजूल के पैसे खर्च होंगे, तो आपको वक्त, पैसे और परिवार की जो वैल्यू है वो आपको मुंबई जैसी जगह में पता चलती है। क्योंकि आपका एक दिन का गलत रूटीन आपकी बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है। तो यस ऑफ कोर्स, जो आपका क्वेश्चन था कि ये चीज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, बट मैं करता हूँ, क्योंकि अगर अगर फिट है तो हिट है, और दिखेंगे तो बिकेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ईडी मैडम, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं, मेरे तो सारे क्वेश्चंस जो थे, जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, वो अमित सर ने बहुत ही अच्छे से उसको पहले ही अपने पुराने आंसर्स में कवर कर दिया। एंड बहुत अच्छा है सर। मतलब ये वाली इंडस्ट्री को लेके काफी बार पेरेंट्स के मन में बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। मतलब ऐसा लगता है कि अंदर बहुत ही अंदर कुछ कुछ चलता है जो सामने दिखता नहीं है। और बहुत सारे ऐसी खबरें भी आती हैं, कभी कभी न्यूज भी आती हैं, तो खासकर लड़कियों को इस लाइन में भेजने में पेरेंट्स काफी सोचते हैं। मेरे ख्याल से जितना लड़कों से ज्यादा शायद सोचते हैं। तो इसमें बट आप, क्योंकि इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, वो बहुत अच्छी बात है, आपने जैसे बताया। बट बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स के मन में डर रहता है कि क्या होगा बच्चे का, ये वाली लाइन स्टेबल है कि नहीं है, और ये सब क्वेश्चंस आते हैं। खासकर हम लड़कियों के बारे में भी सोचे जो बनना चाहती हैं, मॉडलिंग में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए आप कैसे कहेंगे, क्या कन्विंस पावर रहे उनके लिए, और पेरेंट्स को अपन इस इंडियन सोसाइटी को मेंटालिटी कैसे चेंज कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आजकल जो बॉयज और गर्ल्स वाली बात है, मैं उस चीज को नहीं मानता। ये जो चीज बोल दी जाती है ना कि गर्ल्स के लिए इतना सोचना चाहिए, बॉयज के लिए इतना सोचना चाहिए, सब इक्वल है, ये सब कुछ मतलब नहीं है। हाँ, आपके पेरेंट्स हमेशा एक गर्ल्स को लेके वो एग्जैक्टली वो कई जगह हम बोलते हैं कि उनकी सोच छोटी है, वो सोच नहीं छोटी होती है। वो हमेशा आपका कोई भी इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए एक डर रहता है, तो वो गलत नहीं होता है। अब आपकी बात ये है कि इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, पर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, और आपको लगता है कि वहां पे जाके आप किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, तो क्यों नहीं जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए, पर उसकी तैयारी करना पड़ेगी आपको। आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा इसके लिए, और वो शुरुआत आपको जरूरी है कि आप मुंबई जाके करें। आप आज एग्जाम्पल, आप आज भोपाल में हैं, आप भोपाल में अपनी एजुकेशन जरूर करिए, और एजुकेशन के साथ साथ पैरेलली आप थिएटर करिए। थिएटर करते 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 आपको ये महसूस हो जाएगा कि मैं इस इंडस्ट्री में जाने लायक हूँ या नहीं हूँ। और आप जब आपको ये फील होने लगेगा कि मैं इस लायक हूँ, तो फिर आप जरूर जाइए। अब आती बात इंडस्ट्री अच्छे बुरे, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे कोई भी जॉब हो, उसमें हर तरह का अच्छा और बुरा इंसान होता है। जॉब में भी गर्ल्स के ऊपर काफी गलत तरह के लोग होते हैं जो उनको टारगेट करते हैं। तो कोई भी फील्ड अच्छा, देखिए, इंसान या अच्छा या बुरा होता है, ना कोई धर्म अच्छा बुरा होता है, ना कोई फील्ड अच्छी बुरी होती है। इंसान होता है, उसकी नीयत होती है, वो चीज होती है।
आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं और अगर उसमें गर्ल्स को बोला जाता है आप कॉम्प्रोमाइज करें, देखिए इस फील्ड में रेप नहीं होता है, इस फील्ड में कॉम्प्रोमाइज होता है जो आपकी खुद की मर्जी होती है। अगर आपको अगर कुछ गलत चीज ऑफर की जा रही है, और पहली बात तो पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, पर अगर इसमें आपको कोई चीज ऑफर की जा रही है और आप उस चीज को डिनाई करते हैं और आपके अंदर काबिलियत है, आप कर सकते हैं, तो कोई चीज आपके ऊपर कोई जबरदस्ती थोड़ा ना कर सकता है। मुंबई एक ऐसी जगह है यहाँ पर लड़कियां रात को 4 बजे भी बिल्कुल वेस्टर्न आउटफिट्स में घूमती है, पर कभी कुछ नहीं होती प्रॉब्लम। बात ये है कि इंसान की दिमाग में गंदगी, मैं एक अलग चीज बोलता हूँ, जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा घूमता है तो हम कभी उसको गलत गलत नजर से नहीं देखते, पर कोई अगर छोटे कपड़े पहनता है तो हम उसको गलत नजर से देखते हैं। तो गलत कौन हुआ? आपके नजरिया गलत हुआ ना। तो हम जब हम इस फील्ड को गलत फील्ड को गलत या अच्छा बोलते हैं, तो ये सिर्फ उन पे डिपेंड करता है कि आपको किस रास्ते के थ्रू जाना है। आप अगर बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं और आपने ये सोचा ही हुआ कि सिर्फ हम गलत रास्ते को ही चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आपके साथ गलत ही होगा। और आप ये सोचेंगे कि अगर मेरे अंदर स्किल्स है, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मेरा फिजिक बहुत अच्छा है, मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, डांस अच्छा है और थिएटर प्रॉपर एक अच्छा किया हुआ है और अच्छा बैकअप है आपके पास और फैमिली का विश्वास है, और आप उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे, ये आपके अंदर विश्वास है कि आपका परिवार का विश्वास आप कभी नहीं तोड़ेंगे, तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। ये मेरी खुद की सोच है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज को बता रहा हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमित सर। इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग कि ये एग्जैक्टली सोच पे है इंसान की और ना ही इंडस्ट्री में है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। ऑफ एंड कोर्स यही आई थिंक आज के जो पेरेंट्स हैं, बिकॉज अभी भी यहाँ पे बच्चों की लाइन बहुत ज्यादा पेरेंट्स का उसमें इनपुट रहता है कि वो क्या करें, तो दोनों को कन्विंस करके साथ में चलना चाहिए और सारे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। हमारे रिसेंटली हमारे साथ मेहदी बोस भी जुड़े थे सेज टॉक में, जिन्होंने स्वैग से स्वागत और ये वाले ऐसे सॉन्ग्स गाए हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस समय पे हमारे जो परिस्थितियां हैं ये वाली लाइन में आने के लिए, वो इंसान की मतलब सोच को, मतलब उनके भी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और मेरे ख्याल से इस समय पे पेरेंट्स को सपोर्टिव होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अगर उनको बच्चों पे विश्वास करना पड़ेगा, उनकी अपब्रिंगिंग पे विश्वास करना पड़ेगा, जिससे 100%, 100%। आगे जाएं। बिल्कुल। पर इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि वो तो आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, पर उस विश्वास को आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप आ जाए भोपाल में हैं और भोपाल के अंदर आप पैरेलली थिएटर कर रहे हैं आप, तो उस वक्त उन 2-3 साल जब आप पढ़ाई के साथ साथ थिएटर कर रहे हैं, तो आपके परिवार को और आपको भी पता चल जाएगा कि आप इस फील्ड के लिए हैं कि नहीं। Yes. जबरदस्ती इस फील्ड के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान कितना भी ट्राई कर ले, वो लता मंगेशकर नहीं बन सकता है। वो उसको ऊपर से कुदरत ने जो दिया है ना, कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, पर काबिलियत उससे बड़ी चीज होती है, और उसके साथ साथ होती है गॉड गिफ्ट। अगर ऊपर वाले ने आपको आवाज नहीं दी है, आप बहुत से रियाज कर लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, पर आपको अगर आवाज नहीं दी है, तो आप बहुत से बड़े सिंगर नहीं बन सकते। मतलब ये दिस इज माय पर्सनल थॉट। तो आप पहले अपने आप को तो पहचानिए कि आप वाकई किस चीज के लिए बने हैं। मैक्सिमम हम लोग क्या होता है, हमारे अंदर एक तो पेशेंस की बहुत कमी है, सबको बहुत जल्दी या तो बिल्कुल बहुत बड़ा स्टार बनना है, या फिर बिल्कुल जिंदगी ऐसा लगता है कुछ है नहीं उनके लिए। और दूसरी बात, अपने आप को पहचानना बहुत कम हो पाता है। मैक्सिमम लोग, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, ये अब्रॉड में जॉब कर रहा है, ये एमबीए कर रहा है, ये डॉक्टर, आपको किसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है? जिंदगी का दूसरा नाम सुकून है, सेटिस्फेक्शन है, पैसा नहीं है, सेटिस्फेक्शन है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन जिस फील्ड में मिलता है, आप उसको पहले सोचिए वो क्या फील्ड है। अगर वो फील्ड आपकी सेटिस्फेक्शन की होगी, आपको मतलब जिसमें मिलके आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी भर इस चीज में खुश रह सकता हूँ, अपने आप उस फील्ड में भी आप सब कुछ अर्न कर सकते हैं। Exactly. Thank you so much, Amit sir. थैंक यू मैम फॉर आस्किंग द वंडरफुल क्वेश्चन। बहुत सारे पेरेंट्स को उनका आंसर मिला होगा कि कैसे हाउ टू रिएक्ट विद दिस क्वेरी ऑफ देयर चाइल्ड। तो अमित जी, आप हम कई बार देखते हैं अलग अलग तरीके के रोल्स होते हैं, जैसे कि आपने सूर्यदेव का भी रोल किया है। अग्निदेव, तो अग्निदेव। अग्निदेव जी, अग्निदेव, सॉरी। जी जी जी। तो ना इतनी मतलब वंडरफुल पर्सनालिटी और चार्मिंग नेचर होने के बाद में जब ऐसा कुछ रिलीजियस रोल मिलता है, तो आप कैसे उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाते हैं सर? मतलब नहीं, रात को भी भगवान के सपने आते हैं और उसमें मैं खुद देखता हूँ अपने आप को। एग्जैक्टली फीलिंग बहुत अच्छी आती है, और थोड़ा अलग, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपका जो मातृभाषा आपकी, जब आप उसमें परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग भी आती है। पर सीरियसली बता रहा हूँ,
मैंने अभी माइथोलॉजिकल रोल थोड़े से इसलिए कम कर दिए हैं क्योंकि इतने भारी भारी मुकुट को लेकर और इतनी सारी ज्वेलरी को पहनकर जब रोल करते हैं तो सच बता रहा हूँ, और गर्मी के मतलब जब वक्त होता है तो लिटरली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मैं तो सच में यही सोचता रहा था कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर अगर वाकई हमारे जो पुराना जो कल्चर था वो इतनी हैवी ज्वेलरी पहनते थे, क्योंकि मैं तो इसको 1 घंटे पहनता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है। जी तो एनीवेज जो ऐसे माइथोलॉजिकल रोल जब करते हैं अच्छा लगता है, और इससे हमारी जो हिंदी है वो बहुत अच्छी और सुधरती है। और क्योंकि हम भारत देश के हैं, हमारा हमारा जो पुराण है, महाभारत, गीता और इनकी जो कहानियां हैं, इनसे बहुत कुछ आप जब सीरियल करते जाते हैं तो धीरे धीरे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है of course। और वैसे भी एक्टर के लिए कोई भी रोल हो, मुझे वो हर रोल पसंद आता है, चाहे वो और खासकर जैसे मुझे नेगेटिव रोल पसंद है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के रोल पसंद है, तो किसी भी एक्टर के लिए कोई भी तरह का रोल वो पसंद ही आता है मुझे। आई एंजॉय। अभी सर जो आपका जो लुक हमें दिख रहा है थोड़ा सा अलग मिलिट्री है। स्टाइल में अलग सा राइट कुछ राइट। दिख रहा है सर, तो कुछ उसके वो मैं बारे में अभी बताएं सर अभी। ये अभी मैं एक्चुअली एक मेरा वेब सीरीज का चल रहा है, शायद अगर सब चीजें नहीं तो मैं जल्दी एक वेब सीरीज करूंगा, तो उन्होंने बोला कि इस लुक को रख के देखें आप कि कैसा लग रहा है उस पे, तो मैंने कहा लेट्स सी, देखते हैं। तो इसलिए अभी इस लुक को रखा हुआ है मैंने। वो तो सीधा उन वेब सीरीज में आपकी। या हाँ सर आपकी एक मूवी आने वाली अपकमिंग मूवी शुद्धि द प्योरिटी ऑफ सोल, जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। काफी अच्छे अवार्ड्स और उसके लिए भी नॉमिनेशन में आई है ये मूवी, जैसे कि फिल्म फेस्टिवल 2019 में भी इसमें मैनचेस्टर में आई है, जी यूनाइटेड किंगडम यूके में भी आई है, जी तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा सर, सर। ये फिल्म बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म थी मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरा वेट ज्यादा था, अब उस वेट को मुझे कम करना था। मैंने वेट कम किया और अपना स्टार्ट कर दिया। ये फिल्म ऐसी थी कि जिसमें मैंने एक नेगेटिव रोल किया है जो एक ठाकुर का है। अब उसके लिए मुझे फिर से 12 किलो वेट बढ़ाना था। तो आप समझ सकते हैं ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इस जी कैरेक्टर की डिमांड ही ये थी कि ये बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है और इसकी स्टोरी को बहुत पसंद किया गया है। सभी जगह उसको इतने जो अवार्ड्स मिले हैं। अभी हालांकि इसको अभी जल्दी इसको दिखाएंगे लोग, लॉन्च करेंगे, तो ये वर्ल्ड वाइड गई है। जितना आप, जैसा कि आपने बताया, सभी जगह इसको अवार्ड्स मिले हुए हैं। इसकी स्टोरी बहुत अलग है और जब भी लॉन्च होगी आपको पसंद आएगी ये। तो इसमें बस यही था कि मेरा जो मैंने वेट कम करने के बाद फिर पुट ऑन किया, क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड वो थी। और क्या होता है, वजन करने के बाद बढ़ाना, उसके बाद फिर कम करना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। बट यस ऑफ कोर्स किया। सब लोगों ने मेरे कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। मतलब कुछ लोगों ने मेरे कैरेक्टर को गाली बकी। गाली इसलिए क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा मेरा, जब आप देखेंगे फिल्म तो आपको समझ में आएगा, इतना ज्यादा मैंने वो बोलना चाहिए नेगेटिव रोल किया हुआ है। तो वो गाली मेरे लिए अवार्ड्स थी, क्योंकि वो कैरेक्टर में जब मैं इतना डूब गया तभी वो गालियां मुझे मिली। मतलब एनीवेज, मेरा मतलब बोलने का मतलब ये था। जस्टिफाइड विद फॉर मी सी, जब आप किसी कैरेक्टर को करते हैं और जब कैरेक्टर आप वाकई अच्छा करते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता कि मैंने बहुत अच्छा किया, पर जब लोगों ने बोला कि वाकई ये इतना, इसको देख के ऐसा लग रहा था पीट दें इसको, मार दें। तो एक तरफ मेरी मतलब मुझे जब वो बोल रहे थे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि कमेंट्स मिल रहा एकदम सर। बढ़िया सर, कॉम्प्लीमेंट ही था सर। है। जी तो सर ऐसा, और जैसे कि शक्ति कपूर जी, अमरीश पुरी जी, ये लोग प्राण, ये लोग भी रोल ऐसे करते थे। प्राण साहब का तो लोगों ने प्राण अपने बच्चों का नाम रखना बंद कर दिया बंद था। कर देता, ट्रू। तो इस तरीके के जो जी नेगेटिव रोल्स के लिए इतना हुआ हाँ था। और हाँ। लेकिन सर आप तो इतने पॉजिटिव हैं, इतने हम्म, यंग, इतने डायनामिक, इतने डैशिंग हैं, हम्म। तो आपके जो फीमेल फैंस हैं, जो आपको खूब सारे फोन कॉल्स आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, तो आप उनसे कैसे मैनेज करते हैं? आपको कैसे बचा के रखते हैं अपने आप को? नहीं नहीं सर, वर्क पे कंसंट्रेट कैसे नहीं कर मेरा पाते हैं सर? मैं कंसंट्रेट कर लेता हूँ, डोंट वरी। नहीं, सब चीज कर लेता हूँ। और मेरा वैसे भी मेरी लाइफ में मेरा करियर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी भोपाल आता हूँ, मेरे फ्रेंड्स जितने भी लोग सागर से, जबलपुर से, विदिशा से, भोपाल के, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मुझे
ऐसा लगता है हम जिस जगह रहते हैं मध्य प्रदेश, मैं बुंदेलखंड से हूँ, यहाँ पे आज भी जो रिश्तों की कीमत है वो मेट्रो सिटीज में नहीं है। तो चाहे मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी लोग सब इकट्ठे होते हैं, हम लोग पार्टीज करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये मुझे एक बहुत रिफ्रेश करता है, क्योंकि जब आप मुंबई के बिल्कुल एक बहुत टाइट शेड्यूल में रहते हैं और उसके बाद जब यहाँ वापस आते हैं तो जो आपको सुकून मिलता है तो अच्छा है, लगता है। और आपका जो सवाल है मैंने घुमा दिया, आप समझ जी जी सर। तो ये तो एक रोमांटिक सवाल था सर। इसके बाद में जैसे अभी आपने स्ट्रगल के बारे में भी बताया, कुछ ना जैसे बहुत सारे टेंशन्स भी चलते हैं चीजों को लेके। जैसे कभी कभी हमको सुनने में आता है कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं या बहुत सारा प्रेशर होता है, काम किसी को कभी कभी नहीं 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 मिलता है। तो ये सब चीजें जो होती है, या आपस में कभी कभी कंपटीशन या जुलसी या बहुत सारी ऐसी चीजें जो चलती है आपस में, तो उससे कैसे मतलब आप ओवरकम आते हैं? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वी अंडरस्टैंड दैट। ये आपका सवाल बहुत बहुत जरूरी है आज के वक्त में, और ये इंडस्ट्री का नहीं, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स के लिए भी सवाल है ये। आज आप देखिए, जब हम लोग बचपन में, जब मैंने बोला मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। जैसे हेलो, आपका आवाज आ रही मेरी? यस यस जी हाँ जी। तो हम लोग हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्पोर्ट्स मतलब खेला करते थे, काफी चीजें हम लोग की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत हुआ करती थी। तो आज जो क्या हो गया है कि लोग, बच्चे गैजेट्स में, कंप्यूटर्स में, गेम्स में एक्टिव हो गए और माँ बाप बहुत बिजी होते जा रहे हैं। अब उनके लिए एक, मैं बहुत अलग से आपको बहुत डिफाइन कर रहा हूँ कि ये सुसाइड अटेम्प्ट, ये सब चीजें क्यों होती है, क्योंकि एक पेशेंस नहीं है, दूसरा अगर माँ बाप एक अच्छे दोस्त हैं, आपकी पूरी बातों को सुनते हैं, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर मेंटली और फिजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब वो हम किससे पूछते हैं? जो हमारी एज का है, उसका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस एक सा है। पर अगर आपकी माँ या आपके पिता उसमें एक अच्छा दोस्त बन जाते हैं तो ये जो सुसाइड वाली चीजें हैं, ये सब चीजें नहीं होती। क्योंकि जब आप, दूसरा होती है ओवर एक्सपेक्टेशन। जब हम एक फील्ड में जाते हैं, मुझे लगता है मरना या सुसाइड करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। पता नहीं इंसान कैसे कर लेता है ये। तो जब आप कोई भी चीज में इतने ज्यादा एक सोच लेते हैं कि नहीं, मेरा ये नहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और जो सुसाइड कर लेना या डिप्रेशन में चले जाना, इसका सिर्फ सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम एक तो बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और दूसरा हमें लगता है कि अब ये नहीं हुआ तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। हार और जीत तो मतलब मुझे लगता है बल्कि जब आप हारते हैं तभी आपको जीतने के लिए कुछ सीख मिलती है, तब आप उसके उसी से कुछ सीखते हैं। पर आपने अगर अपनी लाइफ को ही खत्म कर दिया तो कोई मतलब नहीं है। और ये इंडस्ट्री में काफी लोग हैं जो इतना काफी लोग हैं जो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है, शायद अकेले लाइफ को इतना जिया है, तो मुझे लगता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है जिंदगी। अगर इसके अंदर कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो वो तो आपकी लाइफ का, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, ये तो आपके सीखने के लिए होते हैं, ना कि आप उसमें सुसाइड कर ले। करेक्ट करेक्ट है सर। नीरज अग्रवाल जी भी हमारे बीच में है, जिन्होंने आपसे कनेक्ट करने में हमें काफी हेल्प की। मैं चाहूंगा, जी उनका बिल्कुल। बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो श्योर श्योर श्योर। जी वेलकम, आपका स्वागत है। मेरा बेटा सर धीरज जी। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन, ऑल वेल। मेरा क्वेश्चन था कि जब आपने इंडस्ट्री से फूड इंडस्ट्री में आने का डिसाइड, तो उस वक्त आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे? ये बहुत मतलब आपका एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं मुझसे बहुत कनेक्ट करता है, क्योंकि रीजन क्या था कि आप एक एजुकेशन लेते हैं। जैसे मैंने जब ज्वेलरी डिजाइनिंग किया और आई वाज इन ओवरसीज, आई वाज हैंडलिंग यूएस, यूरोप, हांगकांग, चाइना, दुबई, और उसके बाद में पीसीओएस में रीजनल हेड था। और उसके बाद जब इस फील्ड में इस फील्ड में मतलब मैं कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा था, उसी वक्त मेरा सिलेक्शन सावधान इंडिया में हुआ, कुछ 2 सीरियल्स में हुआ और डीपी ज्वेलर्स से मुझे वो आया कि आप नेशनल हेड ज्वाइन कर लीजिए। अब एक तरफ आपका एक बिल्कुल एक सेटल्ड करियर है, आपको सब कुछ मतलब मिल रहा है, और दूसरी तरफ
आपको एक करियर में एक बहुत बोलना चाहिए एक सपना जो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब सब कुछ छोड़ के। तो असमंजस थी, ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरा। मैंने अपने फादर से बात की, मैंने उनसे पूछा कि मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ। फादर हैं, सोचेंगे भी, चिंता उनको भी हुई कि सोच लो तुम ये चीज़ कर पाओगे। तो मैंने कहा मैं एक वक़्त देता हूँ अपने आप को, अगर मैं सच में ये कर पाया, तो मैंने उनको बोला कि मैं 6 महीने का वक़्त देखता हूँ, अगर मुझे सच में काम मिला, मैं उसके लिए बहुत कोशिश करता हूँ। तो मतलब सच में काम मिला तो ज़रूर मैं शायद इस फ़ील्ड में मैं ज्वेलरी का काम अभी भी करता हूँ, मेरा साइड बिज़नेस है वो, मैं ज्वेलरी डिज़ाइन भी करता हूँ। बट मेरा मेन मोटिव जो एक्टर बनना था, मैंने उसके लिए एकदम बोलना चाहिए बहुत प्रयास करे और थिएटर जॉइन किया आलोक दादा के साथ। तो एनीवेज़ मुझे काम फिर मिलता रहा, पर वो जो पीरियड था कि आप अपना पूरा करियर जो सेट है, उसके बाद आप एक ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट। और ये बहुत सोच समझ के लिया जाता है, इसको आसान नहीं होता है, क्योंकि पेशेंस चाहिए, फैमिली का साथ चाहिए। मेरे फैमिली ने, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शायद ये बहुत बड़ी वजह थी, जो शायद आई एम लकी फॉर दैट मतलब। तो वो एक ऐसा पीरियड था जो मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सच में मैं वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? थैंक यू सो मच सर। ओके। क्योंकि ना सर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे डिजायर होती है, कहीं ना कहीं ऐसे ड्रीम्स होते हैं, और लेकिन उनको भी यही दिखता है कि करियर बना लें, जॉब में चले जाएं, या फिर अपने जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा करने जाए, तो वो बहुत असमंजस में उनको भी ये चीजें रहती है। तो सर जी। आपको उस समय भी जैसे आपने बताया कि आपने ये चीज करते करते भी उधर अपने आपने चांस लिया, तो आपको क्या चीज थी जो इंस्पायर करती थी, या कौन से वो हीरोज थे या हीरोइंस थे या मॉडल्स थे जिनको आप देख के इंस्पिरेशन लेते थे और आपको लगता था कि इनको रोल मॉडल बना के आगे बढ़ना चाहिए? देखिए रोल मॉडल तो मैं, चाहे आप कुछ भी बोले, मैं खुद का अपने आप ही रहा हूँ। मतलब मुझे अपने आप में ऐसा फील होता था कि मैं शायद ऊपर वाले ने अगर आपको 2 हाथ, 2 पाँव, एक स्वस्थ शरीर दिया है और कुछ सपने दिए हैं जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल आपको बना सकते हैं, तो वो मेरे अंदर ही था। हाँ, ऑफ कोर्स मैं सलमान से बहुत वो रहा, इरफान खान मेरे बहुत, मतलब मैं उनको बहुत पसंद करता था। मेरी 2 से 3 बार उनसे मुलाकात भी हुई। शाहरुख खान साहब, मतलब काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, बट मैं इंस्पायर हुआ कभी इरफान खान से। और मेरे गुरु हैं जो गोविंद नामदेव जी, वो उनसे मैं बचपन से इंस्पायर रहा हूँ, वो मेरे गुरु भी हैं। हर जगह उन्होंने मेरे को सिखाया है। तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में इंस्पायर हुआ, लोगों को लगता था क्रेज़, बट मुझे ऐसा लगता है शायद मैं हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं शाहरुख, सलमान या उस कैटेगरी को ही बनूँगा, या फिर क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, या फिर एकदम उस टॉप का स्टार बनना है, या मुझे बस ये था कि मैं इस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन। मेरी जिंदगी में सुकून जो वर्ड होता है, मैं पैसे के पीछे कभी बहुत नहीं भागा, मैं सुकून के लिए भागा, और मुझे इस चीज को करने में सुकून मिलता है। मैं चाहेंगे नवीन गुजर सर से कि एक बार वो यस, वो प्ले कर दें, इतनी बात हो गई है, ऐसा लग रहा है एक और बार सुन लिया जाए उसको। सॉन्ग प्ले और फिर जीत लेंगे हम जहां, फिर होगी अपनी शान, बीतेगा ये इम्तिहान, कदमों में होगा आसमान, जब साथ हो सारा हिंदुस्तान, जब साथ हो सारा हिंदुस्तान। कुछ देर तो इन कदमों को तू थाम ले, हम सफर, मंजिल तुझे मिल जाएगी, मुश्किल नहीं है डगर, है साथ सब रहनुमा, फिर होगा सब खुशनुमा, जब साथ हो सारा हिंदुस्तान, जब साथ हो सारा
आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। इस रात की फिर होगी सुबह उम्मीदों की शाख से, इन रास्तों पे फिर दौड़ेगी जिंदगी शान से। बेहतर बने गुलसितां, तू साथ दे दे जहां, फिर साथ हो सारा हिंदुस्तान, फिर साथ हो सारा हिंदुस्तान, फिर साथ हो सारा हिंदुस्तान, फिर साथ हो सारा हिंदुस्तान। Salute to you, Amit ji, for creating this wonderful song. सर थैंक यू सो मच। Because सर इसमें सागर सेज ग्रुप भी है, देखा। थैंक यू सो मच, उसके लिए हमें सोनी सर स्पेशल थैंक्स भी, और बीच में आपने हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल का बिल्कुल। वीडियो दिखाया। जी, जी। आपका सेज जो है अभी पूरे म्यूजिक चैनल्स पे दिखाई दे रहा है, 9XM पे और आपके आहो म्यूजिक चैनल पर और इंडिया न्यूज पर, और आप देखेंगे पूरे नेशनल न्यूज इसको कवर कर रहे हैं। तो सेज जो है पूरे इंडिया में पहुंच चुका है आपकी वजह से। थैंक यू सो मच अमित सर। इसमें और स्पेशल थैंक्स मैं बोलूंगा, मतलब ये इसमें नीरज अग्रवाल जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है, उनका नेचर बहुत अच्छा है और मैंने उनसे बोला कि सर छोटी सी गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। अरे वाह, थैंक यू नीरज। thank you, sir. Thank you. मेरी बात का रखिए आपने और उसको ऐड किया। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। एंड मेरे को आप थोड़ा आपका मेरा क्वेश्चन थोड़ा आपके लाइफ बेस्ड था कि लाइक हाउ डू यू मैनेज योर वर्क एंड योर डाइट योर वर्कआउट ऑल टुगेदर डेली ऑन अ डेली बेसिस? इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब यस ऑफ कोर्स मैं इस चीज को सच कहूं तो डिफिकल्ट इसलिए होता है। एक तो मैं मुंबई में जो लाइफ जीता हूँ उसमें मुंबई का मैंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम डिपेंडेंसी कभी नहीं रखी। अकेला रहता हूँ, अगर मेरा शेड्यूल मॉर्निंग का है तो मुझे 4 o'clock या 5 o'clock उठ के निकलना है, तो मेरा बस ये कि सिस्टमैटिक बहुत होता है। मैं अपना डाइट खुद बनाता हूँ, मैं अपनी क्लोथिंग्स, क्लीनिंग और ट्रैवलिंग सभी चीजें, मतलब मैंने बोला मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहता हूँ। तो डिफिकल्ट बहुत होता है, थक जाते हैं और मुंबई में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो 1-1.5 घंटे का जर्नी जाना, 1-1.5 घंटे में आना, उसके बाद दिन भर का वहाँ का शेड्यूल, उसके बाद फूड खुद प्रिपेयर करना। और मैं मैक्सिमम बाहर का फूड अवॉइड करता हूँ, मुझे घर का ही अच्छा लगता है और मैं मैक्सिमम बॉइल्ड लेता हूँ। हाँ, ये बात अलग है जब मैं भोपाल आता हूँ, मुझे अपनी मम्मा के हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है कि मेरा 2-5 किलो वजन बढ़ ही जाता है, वहाँ कंट्रोल नहीं करता हूँ। बट यस ऑफ कोर्स ये बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। पर जब आपके देखिए एक बहुत देशी बात बोलता हूँ मैं कि जब तक आपके जिंदगी में आपके अंदर पागलपन नहीं है, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और जब वो आपके अंदर पागलपन होता है, वो जुनून होता है, वो जुनून आपको थकने नहीं देता है, आपको हर चीज में अपने आप सिस्टमैटिक रखता है। तो सर इट वाज रियली रियली वंडरफुल, आपने सभी चीजें बताई हमें, मतलब रोमांटिक चीजों के बारे में, आपके प्रतीक सर उस पे ही लगे अमित सर, हम जब से उस पे ही लगे क्या सीक्रेट जानते और स्ट्रगल के बारे में और जो ये प्रेशर होता है, स्ट्रेस, उसके बारे में तो सारी चीजें आपने बताई। अब मैं एट लास्ट आपसे यही चाहूंगा कि एक आप अच्छा सा मैसेज यूथ्स को क्या देना चाहेंगे, आज के यूथ्स को, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस होते हैं और बहुत सारा कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो आप कुछ अच्छा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ्स को? और इसके बाद फिर ईडी मैडम के पास कोई क्वेश्चन होगा तो हम लेंगे और अदरवाइज हम फिर एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो सर यूथ्स के लिए आप कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज बताइए। देखिए यूथ के लिए बहुत सिंपल सा, मैं क्योंकि काफी ज्यादा टॉकेटिव भी मुझे पता है, मैं काफी कुछ बोल चुका हूँ, बस मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। व्यस्त रहें, अपने सपने में अपने आप को व्यस्त रखें और मस्त रहें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इस सब चीजों के अंदर, ये 3 चीजों के अंदर आपकी जिंदगी छुपी हुई है। इसलिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, काबिल बनिए। काबिल इंसान कभी भी भूखा नहीं मरता, काबिल इंसान कभी भी तकलीफ में नहीं आता है। अगर आप किस्मत भी सपोर्ट करती है, पर अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ
छोड़कर अगर किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको सच में सब चीजें मिलेंगी, मतलब आप जो भी चाहते हो मिलेगा। पर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे मत रहिए, काबिल बनिए और जो भी है उसमें सेटिस्फाइड रहिए। उसमें बहुत आदमी क्या होता है, बहुत ज्यादा जब किसी सपने को लेके इंतजाज्म होना, उसके लिए बहुत कुछ करना अच्छी बात है, बट उसके लिए डिप्रेशन में जाना, ये सब, ये जो आपने अभी जो सवाल बोला मैं इसको फिर से कनेक्ट करूंगा। मैं यूथ को हमेशा ये बात पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ, पेशेंस रखिए, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा आपको। और कोई भी गलत काम करने के पहले अपने माँ बाप को जरूर देखिए, इन्होंने आपको पैदा किया है, बचपन से बड़ा किया है। अगर आपको चोट लगी या आप अगर इस दुनिया में कुछ भी गलत कदम उठाएंगे तो आपसे ज्यादा तकलीफ उनको होगी। जो ये मेरा दूसरा मैसेज है। और करियर के लिए बस मैंने आपको बोला, और जिंदगी के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बढ़िया सर, ये तो हमारे सेज ग्रुप की भी यही फिलोसॉफी है। हमारे ऑनरेबल सो मच। नहीं, इंस्पिरेशन मिली हमारे स्टूडेंट्स को, उससे इंस्पायर्ड वर्ड्स आपने बिल्कुल कहे, और बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, बहुत अच्छा रोड मैप मिला है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं, हमारे साथ नवीन गुज्जर सर जुड़े थे जिन्होंने काफी हमें हेल्प की होस्टिंग के लिए, तो उनको मैं चाहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स नवीन गुज्जर सर करें आज के इस प्रोग्राम के लिए। जी जी, thank you so much sir for giving me such a wonderful opportunity. आवाज आ रही है सर आपको? जी जी जी, मुझे आ जी रही है। जी जी, जी। हेलो अमित जी, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, ऑल वेल, बाबा जी कृपा। जी जी, थैंक यू, हमेशा बनी रहे सर कृपा आप पर। मेरा लाइन लास्ट वाला ये सर क्वेश्चन कि थिएटर से ही क्या रियल एक्टिंग निकल कर बाहर आती है, क्योंकि वहां पर रीटेक नहीं होते? सर ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो ये मान के देखिए, थिएटर से ही निकल के आती है मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। हर वो जगह जो आपको एक प्रैक्टिस कर, आपको बताऊं, मैं इरफान खान साहब से जब मैं मिला था तो इरफान खान साहब पहले वो इंसान थे जिन्होंने ये बोला कि मैं सबसे ज्यादा सीरियल से सीखा हूँ। तो मैंने सीरियल, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं, मैंने थिएटर बहुत वक्त नहीं किए, बट मैंने जब सीरियल किया और करते 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 करते, और जहां तक आपकी बात रही रीटेक की, मैं आपको बताऊं रीटेक इतने नहीं मिलते हैं। मैंने पार्थो दादा के साथ काम किया है। पार्थो दादा इतने स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने दूसरे से तीसरा रीटेक लिया तो वो आपको तुरंत थ्रो कर देंगे, तुरंत बोलेंगे पैकअप। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में रीटेक अगर आपके होते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान होता है। पूरी यूनिट होती है, उस यूनिट के सामने अगर बार बार आप रीटेक लेंगे तो वो बेइज्जती भी होती है, अपने काम भी नहीं मिलता आपको। हाँ, नो डाउट थिएटर में आपका रीटेक नहीं होता है, पर थिएटर में महीनों की प्रैक्टिस भी तो होती है। अगर आप इतने महीनों की प्रैक्टिस के बाद भी रीटेक लेते हैं तो फिर वेरी ट्रू, आप मेरा वेरी ट्रू, मतलब समझ रहे होंगे मैं कहना चाहता हूँ। 100%, है ना? 100%। आप एक थिएटर के, आप एक प्ले को करने के लिए 2 महीने 3 महीने, कुछ बोल रहे हैं आप? सर आप बोलिए अमित सर प्लीज। तो आप एक थिएटर का जब आप कोई भी प्ले करते हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 महीना 2 महीने 3 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपने एक प्ले को करने के लिए इतना वक्त दिया है, हम लोगों के पास कुछ 1 महीने 2 महीने नहीं होते। हमारे लिए स्क्रिप्ट 15 मिनट और आधे घंटे पहले दी जाती है, उसमें हमें परफॉर्म करना होता है। अगर उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं और 2-3 टेक अगर लेते भी हैं, कई लोग 10 टेक भी लेते हैं, बड़ा एक्टर है उसके लिए चल जाता है। हम लोग जब स्टार्टिंग में थे तो हम लोगों के लिए डांट पड़ती थी उस चीज के लिए, और टचवुड फिर धीरे धीरे आपको उन चीजों का टेक नहीं लेते हैं। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और अपना काम आपका स्टार्ट हो जाता है। बट मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, थिएटर में आपको 1.5 से 2-3 महीने मिलते हैं। हम लोगों को 15 मिनट पहले, कभी कभी तो तुरंत स्क्रिप्ट देते हैं कि आप तुरंत इसको लो और आप इसको स्टार्ट हो जाओ। तो दोनों अपनी जगह सही है। एक्टिंग स्किल्स अगर आपके अंदर है और धीरे धीरे आपने अगर प्रैक्टिस की है तो हाँ, थिएटर से आपकी प्रैक्टिस बनती चली जाती है और आपका एक माहौल बनता चला जाता है सबके साथ, और आप खुल जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुलना। आप जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो आप, जब आपने देखा कि स्कूल्स और कॉलेज हमेशा कुछ फंक्शंस करवाते हैं, वो सिर्फ फंक्शंस नहीं होते हैं। मैंने आपसे कुछ वक्त पहले विद्युत जामवाल और कुछ लोगों के साथ एक मैरियट में एक शो किया था जिसमें बहुत सारे किड्स थे। वो किड्स फैशन शो था और उसके अंदर मैंने डाइटिशियंस थे हमारे अंदर, हमारे साथ स्पोर्ट्स के काफी कुछ लोग थे, विद्युत जामवाल था, प्राची मिश्रा जो मिस इंडिया थी, ऐसे काफी लोग थे। अपनी अंजलि हुडा जो रणदीप हुडा की सिस्टर हैं वो थी। तो काफी लोग थे और उनका सिर्फ मोटिव क्या था कि बच्चों को जो उनके अंदर जो है, काफी बच्चे होते हैं जो टॉकेटिव नहीं होते हैं, चुपचाप रहते हैं। मैं इसको आपके थिएटर से क्यों जोड़ रहा हूँ कि जब हमने उन बच्चों को 5 दिन मोबाइल से दूर रखा, उनकी गैजेट से दूर रखा और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज करवाई, वही बच्चे जो बात भी नहीं करते थे, उसके 5 दिन बाद स्टेज पर किस देते हुए वो खूबसूरत से बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। तो जो स्टेज होता है वो आपके अंदर से
जो एक आपके अंदर हिचक होती है उसको खत्म करता है। और थिएटर इसका बहुत बड़ा कारण है कि थिएटर या आपका कोई भी शो जो आप अपने स्कूल या कॉलेजेस में करते हैं, उससे हर बच्चा खुलता है और उसके अंदर जो हिचक होती है वो धीरे-धीरे खत्म होती है। अभी जैसे आपके जो मैं आई फॉरगॉट योर नेम, जो अभी जिनसे मेरी बात हो रही है, नवीन साक्षी। हाँ, साक्षी नहीं, साक्षी। अभी साक्षी से मैं देख रहा हूँ, साक्षी शी इज वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ रही हैं। पर अगर इन्होंने ये पहली बार इस जूम को या कभी भी लाइव आना स्टार्ट किया होगा, उनके मन में हिचक होती होगी। आज वो हिचक खत्म हो चुकी होगी। आज आप किसी से भी बात कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपने आज आपने इस स्टेज पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टेज कोई सा भी हो, परफॉर्म करना जरूरी है, खुल के अपने विचार रखना बहुत जरूरी है। जी थैंक यू सो मच अमित जी। अभी जैसा कि हम लोग सेज टॉक सीरीज को काफी समय से करते आ रहे हैं और सेज टॉक सीरीज में अभी हमारा बिल्कुल एक और सेशन जस्ट अबाउट टू बिगिन है, स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल सभी से विदा लेना चाहेंगे और बहुत ही अच्छा रहा आपका सेशन, काफी रियल एग्जांपल्स आपने सभी के साथ साझा किए। मैं आपके लिए बस 2 लाइनें कहना चाहता हूँ और फिर इस सेशन को हम लोग क्लोजिंग की तरफ लेकर चलेंगे कि मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगा मैं इन रस्तों की मुश्किलों का जिक्र, मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगा मैं इन रास्तों की मुश्किलों का जिक्र, अभी तो बस आगे बढ़ने से ही फुर्सत नहीं है। क्या बात है, वाओ, ब्यूटीफुल सर, जी, खूबसूरत लाइन है, ब्यूटीफुल सर। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। जी मैम प्लीज। थैंक यू सो मच everyone. Thank you Amit sir once again. Thank you Amit sir, thank you Sakshi ma'am, Thank you, sir. thank you everyone for giving the valuable time to us. Thank you.